اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے تھک سے گئے تھے، پوری طرح سے مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخین کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے، اور ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف اور فتنہ و فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈالوں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ میں خود خلیفہ مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی۔ اس دور کے تھوڑے عرصے بعد کے واقع نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایات جنم لے رہی تھیں اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قیصر و کسریٰ جو پسپائی اور زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور افریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ شاید نہ کریں، عمر کا مزاج بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ لیتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عوف، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خدا کی قسم خلیفہ رسول، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، خلیفہ رسول، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور اگر میں کسی کی غلطی یا کوتاہی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ خلیفہ رسول بے شک ایسا ہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ کسی تک نہ پہنچے۔ عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المومنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے کہا، ابو عبداللہ، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، خدا کی قسم ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھوسنا چاہتا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک اور سوال کا جواب دے ابو عبداللہ، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو عبداللہ، اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے، میں نے تجھے جو کہا اور تو نے مجھے جو کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی اور صحابہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رائے لی۔ ان میں مہاجرین
मुहाजिरीन भी थे और अंसार भी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर एक से कहा था कि वो किसी और से इस गुफ्तगू का जिक्र तक न करे, लेकिन ये मामला इतना अहम था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की। ये आइंदा खिलाफत का मामला था और सहाबा कराम के लिए मसला ये था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त तबीयत के मालिक थे, उनके फैसले बड़े सख्त होते और वो बड़ी सख्ती से उन पर अमल करवाते थे। उन सब ने एक वफ्द इस मकसद के लिए बनाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कायल करें कि उमर बिन खत्ताब को खलीफा मुकर्रर न करें। जब ये वफ्द खलीफा अव्वल के पास गया तो वो लेटे हुए थे। बुखार ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि अपने जोर से उठ भी नहीं सकते थे। वफ्द के कायद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम उमर खलीफा नहीं हो सकता। अगर तूने उसको खलीफा मुकर्रर कर दिया तो अल्लाह की बाज़पुरस का तेरे पास कोई जवाब न होगा। उमर तेरी खिलाफत में सब पर रूब और गुस्सा छाड़ता है। वो खुद खलीफा बन गया तो उसका रवैया जालिमों जैसा हो जाएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ न सके। उन्होंने गुस्सीली आवाज में कहा, मुझे बिठाओ। उन्हें सहारा देकर बिठा दिया गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से और नकाहत से कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तुम सब मुझे अल्लाह की बाज़पुरस से और उसके गजब से डराने आए हो? मैं अल्लाह के हुजूर जाकर कहूंगा कि मेरे रब, मैंने तेरे बंदों में बेहतरीन बंदे को खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी है और मैंने जो कहा है वो तमाम लोगों को सुना दो। मैंने उमर बिन खत्ताब को खलीफा मुकर्रर कर दिया है। वो जो सब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके फैसले के खिलाफ कायल करने आए थे खामोश हो गए और शर्मसार भी हुए कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को बीमारी की हालत में परेशान किया। वो सब उठकर चले गए। उसे अगले रोज अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा के कातिब थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अबू अब्दुल्लाह, लिख जो मैं बोलता हूँ। उन्होंने लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसीयत है जो अबू बकर बिन अबू क़हाफ़ा ने उस वक्त लिखवाई है जब वो दुनिया से रुखसत होकर मौत के बाद की जिंदगी में दाखिल हो रहा था। ऐसे वक्त पक्का काफिर भी ईमान ले आता है और जिसने कभी सच न बोला हो वो भी सच बोलने लगता है। मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब को तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ। तुम सब पर उसकी इताअत फर्ज है। मैंने तुम्हारी भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अगर उमर ने तुम पर ज्यादती की और अदलो इंसाफ न किया तो वो हर इंसान की तरह अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होगा। मुझे उम्मीद है कि उमर अदलो इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा। मैंने जो फैसला किया है उसमें तुम्हारी भलाई और बड़ाई के सिवा और कुछ नहीं। वसीयत लिखवाते लिखवाते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर गशी तारी हो गई। उन्होंने यहाँ तक लिखवाया, मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब को, और वो गशी में चले गए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद ये फिक्रा मुकम्मल कर दिया, तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ। तुम सब पर उसकी इताअत फर्ज है। मैंने तुम्हारी भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु होश में आ गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू अब्दुल्लाह, पढ़ जो मैंने लिखवाया है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़कर सुनाया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम, तूने जो सोच कर लिखा है वो सोच गलत नहीं थी। तूने ये सोच कर इबारत पूरी कर दी कि मैं गशी की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गया तो नामुकम्मल वसीयत खिलाफत के लिए झगड़े का बायस बनेगी। उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बेशक अमीरुल मोमिनीन, मैंने यही सोच कर इबारत मुकम्मल की थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह तुझे इसकी जज़ा दे। उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज न बदले और वसीयत मुकम्मल लिखवा दी। फिर उन्होंने कहा, मुझे उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले चलो। उनके मकान का एक दरवाजा मस्जिद में खुलता था। वो दरवाजा खोला गया। नमाज का वक्त था। बहुत से लोग मस्जिद में आ चुके थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जोजा अस्मा बिन्ते उमैस दोनों हाथों से सहारा देकर मस्जिद वाले दरवाजे तक ले गईं। नमाजियों ने उन्हें देखा तो मुतवज्जे हुए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नकाहत के बावजूद बुलंद आवाज से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे भाइयों, क्या तुम उस शख्स पर राजी होगे जिसे मैं खलीफा मुकर्रर करूं? मैंने इसमें तुम्हारी भलाई सोची है और अपने किसी रिश्तेदार को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। मेरे बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा होगा। क्या तुम सब उसकी इताअत करोगे? बहुत सी आवाजें आईं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, हम इस फैसले को कबूल करते हैं। हम इब्ने खत्ताब की इताअत कबूल करेंगे। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत पर अपनी मोहर सब्त कर दी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का पेशा तिजारत था, लेकिन खिलाफत का बोझ कंधों पर आन पड़ा तो तिजारत की तरफ तवज्जो न दे सके। गुजर औकात तो करनी ही थी। उन्होंने अपने कुंबे के लिए बैतुल माल से कुछ अलाउंस मंजूर करवा लिया था। अब जब उन्होंने महसूस कर लिया कि वो जिंदा नहीं रह सकेंगे तो उन्होंने अपने अहले खाना से कहा
कि उनकी जो थोड़ी सी जमीन है वो उनकी वफात के बाद बेचकर ये तमाम रकम जो वो गुजारे के लिए बैतुल माल से लेते रहे हैं बैतुल माल में जमा करा दें। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरी वक्त अहले खाना को बिठाकर कहा, सब मेरे करीब आ जाओ, मुझे सिर्फ 2 कपड़ों का कफन पहना कर दफन करना। तुम देखते रहे हो कि मैं एक ही कपड़ा पहना करता था, उसके साथ एक कपड़ा और मिला लेना, उन कपड़ों को पहले धो लेना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हम 3 नए कपड़े ले सकते हैं, कफन 3 कपड़ों का होता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं अजीज बेटी, कफन तो इसलिए होता है कि जिस्म से कोई मवाद और नमी निकले तो उसे कफन चूस ले। कफन पुराने कपड़ों का हुआ तो क्या, नए कपड़े पहनने का हक जिंदा लोगों का है। मुझे गुस्ल अस्मा बिनते उमैस देगी, अगर अकेले गुस्ल न दे सके तो अपने बेटे को साथ ले ले। इतने में अंदर इत्तला दी गई कि इराक के महाज से मुसन्ना बिन हारिसा आए हैं। घर के किसी फर्द ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस वक्त बात करने के काबिल नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा, उसे आने दो, वो बहुत दूर से आया है, जब तक मेरा सांस चल रहा है मैं अपने फराइज से कोताही नहीं कर सकता। मुसन्ना को अंदर बुला लिया गया। उन्होंने जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत देखी तो पशेमान हो गए और बात करने से झिझकने लगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे गुनाहगार न कर इब्ने हारिसा, हो सकता है तू मदद लेने आया हो, मैं अगर तेरे लिए कुछ न कर सका तो अल्लाह की बाज पुरस पर क्या जवाब दूंगा। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, महाज हमारे काबू में है, हालात हमारे हक में है, लेकिन तादाद की कमी परेशान करती है। मुसलमान अब इतने नहीं रहे कि उन्हें फौज में शामिल करके महाजों पर भेजा जाए। जो जिहाद के काबिल थे वो पहले ही महाजों पर हैं। अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से उन लोगों को मुजाहिदीन की सफों में खड़ा नहीं किया जा सकता जो मुर्तद हो गए थे। मैं ये दरखास्त लेकर आया हूँ कि इनमें बहुत से ऐसे हैं जो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर चुके हैं और महाजों पर जाना चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इब्ने खत्ताब को बुलाओ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूर नहीं थे, जल्दी से आ गए। अमीरुल मोमिनीन ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इब्ने खत्ताब, इब्ने हारिसा मदद मांगने आया है, ये जो कहता है ऐसा ही कर और इसे फौरन मदद देकर महाज पर रवाना कर, और अगर मैं इस दौरान फौत हो जाऊं तो इस काम में रुकावट ना हो। अरबों में रिवाज था कि बातें शायराना अल्फाज और अंदाज से किया करते थे। खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़ा के वक्त की चंद बातें तारीख में महफूज हैं। उनकी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके साथ लगी बैठी थी। उन्होंने बाप को नज़ा के आलम में देखकर उस वक्त एक शायर हातिम का एक शेर पढ़ा, नज़ा का आलम तारी होता है, सांस न आने से सीना घुटने लगता है, तो दौलत इंसान की कोई मदद नहीं कर सकती। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीफ आवाज में कहा, नहीं बेटी, हमें दौलत से क्या काम, इस शेर की बजाय तूने कुरान की ये आयत क्यों न पढ़ी, तुझ पर नज़ा का आलम तारी हो गया है, यही है वो वक्त जिससे तू डरा करता था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान से ये अल्फाज निकले तो उन्हें आखिरी हिचकी आई। उन्होंने सरगोशी में ये दुआ की, या अल्लाह, मुझे मुसलमान की हैसियत में दुनिया से उठाना और बाद अज़ मर्ग मुझे सालिहीन में शामिल करना। ये खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी अल्फाज थे। दिन सोमवार था, सूरज गुरूब हो चुका था। तारीख 22 अगस्त 634 ईस्वी बमुताबिक 21 जमादियुल आखिर 13 हिजरी थी। उसी रात दफन कर देने का फैसला हुआ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वसीयत के मुताबिक उनकी ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस ने गुस्ल दिया। मैयत पर पानी उनके बेटे अब्दुर्रहमान डालते जाते और अब्दुर्रहमान की वालिदा गुस्ल देती जाती। गुस्ल के बाद वो चारपाई लाई गई जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक कब्र तक पहुंचाया गया था। उस चारपाई पर खलीफा रसूल का जनाजा उठा और जनाजा मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार और मिंबर के दरमियान रखा गया। नमाज जनाजा की इमामत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। मदीना की वो रात सोगवार थी। गलियों में हिचकियां और सिसकियां सुनाई देती थी। रात भी रो रही थी। वो अजीम हस्ती इस दुनिया से उठ गई थी जिसने इस्लामी सल्तनत की न सिर्फ बुनियादें मजबूत बनाई थी बल्कि उन पर मजबूत इमारत खड़ी कर दी थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। कब्र इस तरह खोदी गई कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का सर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के साथ था। इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा रसूल की वो रफाकत जो उन्होंने जिंदगी में कायम रखी थी वफात के बाद भी कायम रही। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने अपनी खिलाफत के पहले रोज ही जो पहला हुक्मनामा जारी किया वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की माजूली का था। उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम कासिद के हाथ भेजा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अब सालार आला नहीं बल्कि नायब बना दिए गए थे। इसका मतलब ये था कि अब वो किसी मफतूहा इलाके के अमीर नहीं बन सकते थे। मदीना में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के दूसरे दिन मस्जिद नबवी में नमाज की इमामत की और खलीफा की हैसियत से पहला खुतबा दिया। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही,
कौम उस ऊंट की मानिंद है जो अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है। उसे जहाँ बिठा दिया जाता है वो उसी जगह बैठा अपने मालिक का इंतजार करता रहता है। रब्बे काबा की कसम, मैं तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर चलाऊंगा। उन्होंने खुतबे में और भी बहुत कुछ कहा और आखिर में कहा, मैंने खालिद बिन वलीद को उसके ओहदे से माजूल कर दिया है और अबू उबैदा उस फौज के सालार आला और शाम के मफतूहा इलाकों के अमीर हैं। मस्जिद में जितने मुसलमान मौजूद थे उनके चेहरों के रंग बदल गए। बाज के चेहरों पर हैरत और बाज के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फुतूहात थोड़ी और मामूली नहीं थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी हर फतह और हर कारनामा मस्जिद में बयान किया करते थे और ये खबर तमाम तर अरब में फैल जाती थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज्यादातर फुतूहात मौजज़ानुमा थी। इस तरह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सबके लिए काबिल एहतराम शख्सियत बन गए थे। मगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनते ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को माजूल कर दिया। हर कोई उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछना चाहता था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जुर्म किया है जिसकी उन्हें इतनी सख्त सजा दी गई है। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो पूछे बगैर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फैसले की मुखालिफत करना चाहते थे, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बास पुर्स करता। सब जानते थे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे नर्म मिजाज नहीं और उनकी तबीयत में इतनी दुरुस्ती है जो बाज़ औक़ात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर इस्लाम की पूरी तारीख का सुनहरा दौर है। ये वो जमाना है जब मुसलमान पूरी तरह मुत्तहिद थे और उनकी अफवाज रोम और ईरान के खिलाफ फतह पे फतह हासिल किए जा रही थी। बलोचिस्तान से लेकर मिस्र तक इलाका उसी दौर में फतह हुआ। सहाबा कराम ने उन इलाकों के आम लोगों को कैसर किसरा की गुलामी से निकाल कर उन्हें मजहबी और दुनियावी उमूर में आजादी अता की और एक नया निजाम माशरत तरतीब दिया। उस दौर में सहाबा कराम के दरमियान कोई काबिल जिक्र इख्तिलाफ नहीं हुए। इस वजह से उस दौर से मुताल्लिक तारीखी सवालात भी बहुत कम हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मनसब खिलाफत संभालते ही पहला काम ये किया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपाह सालारी के ओहदे से माजूल करके उनकी जगह अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपाह सालार मुकर्रर फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफ मिन सयूफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार करार दिया था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उन्होंने इराक का बेशतर हिस्सा फतह कर लिया था और अब शाम में अपनी गैर मामूली हिकमत अमली के जौहर दिखा रहे थे। मुस्लिम तारीख में अगर फौजी जर्नलों की रैंकिंग की जाए तो बिलाशुबा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें पहले नंबर पर होंगे। तारीख के एक तालिब इल्म के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें माजूल क्यों किया जबकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कारकर्दगी गैर मामूली थी। यहाँ ये वाज़े कर देना जरूरी है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को माजूल हरगिज नहीं किया बल्कि उन्हें सिपाह सालार आज़म की बजाय सेकंड इन कमांड बना दिया। इसकी मुताद्दिद वजूहात थी जिनमें सबसे नुमाया ये थी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जंगों में अपनी गैर मामूली शुजाअत की वजह से बहुत ज्यादा खतरात मोल ले लिया करते थे। आप फिल हकीकत खतरों में कूद पड़ने वाले इंसान थे और बसा औकात थोड़ी सी फौज के साथ दुश्मन पर झपट पड़ते और उसे शिकस्त दे डालते। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी एहतियात के बावजूद इस मामले में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ढील देते थे। इसके बरक्स उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तबीयत मोहतात थी और वो मुसलमानों को अंधाधुंध खतरों में डालना पसंद नहीं फरमाते थे। यही वजह है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीनुल उम्मत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के मातहत कर दिया ताकि वो अपनी गैर मामूली इंतजामी सलाहियतों के सबब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को जरूरत से ज्यादा खतरात मोल लेने से रोकें और उनकी जंगी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें।